Hi, good morning, everyone. This is Dr. Shukla, Senior Director and Head Z Division, Quality Council of India. Yes, So, sir. friends, this is about the MSME Sustainable Z certification scheme. And this is a scheme of Ministry of MSME and Government, Ministry of MSME, Government of India. And Z, it is commonly known as Z certification. When we say Z, it is ZED. And Z certification means certification for zero defect, zero effect. Okay. Now, zero defect, what is it? So, zero defect is something which is with respect to quality. So, zero defect, by zero defect, we mean that our MSMEs should manufacture products in a way that there should be no defect in their products. There should be absolutely zero defect, right? So that their product is of high quality. And zero effect means that while the MSMEs are manufacturing their products and processes should have no negative impact on the environment. So zero defect का मतलब है कि बिना किसी डिफेक्ट के हम अपने प्रोडक्ट्स को बना सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें। और जीरो इफेक्ट का मतलब है कि उन प्रोडक्ट्स को बनाते वक्त जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसका पर्यावरण के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, कोई हार्मफुल इंपैक्ट ना हो। तो ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का एसेंस है। और ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन जो है, ये हम हमारे एमएसएमईज को एमएसएमईज के लिए है, जिनको हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के रास्ते पर चलने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं, राइट? सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट. So zero defect, zero effect ultimately is, basically uh, an initiative to help our MSMEs adopt zero defect, zero effect practices so that they are able to manufacture high quality products without impacting the environment negatively. So that is the essence of zero defect, zero effects. Now, when this scheme, initially it was basically, Honorable Prime Minister, he spoke about zero defect, zero effect. And that is when Quality Council of India uh, developed this model, this framework of Z. And this was adopted by Ministry of MSME for the well-being of the MSMEs. Now, while I say that, you all should also know that Quality Council of India is the implementing agency of for this scheme. So Quality Council of India जो है इस scheme को run करती है और implement करती है basically. और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। सो इट इज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, their DPIIT department is the nodal agency for Quality Council of India. And Quality Council of India, we have a mandate to take quality to the last mile to every citizen. So Quality Council of India plays a vital role in creating the accreditation and third-party mechanism within the country, and also spearheading the quality initiative and propagation in the country. So that is the broad role of Quality Council of India. It is supported by various boards and divisions like NABH, which is for accreditation of hospitals, NABL, which is for accreditation of laboratories, NABATE for education and training. Then we have NBQP, which is basically for promotion of quality. So these are, the multiple boards, and there are basically 5 boards, and then we have divisions, PPID, we have PAD division, we have the Z division, PCB. So all these divisions are primarily for specific tasks that are assigned, or that is the objective for that department or that division. And all these boards and divisions together help in achieving the objectives and the vision of Quality Council of India. So that is about QCI and the basics of the Z certification scheme. Now coming to the vision of the scheme. Now, what is the vision? So this is something that you all need to bear in your mind always, right? तो आप सब लोगों को ये vision जो है इस Z सर्टिफिकेशन स्कीम का, ये आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप विजन को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव से भटकेंगे नहीं। तो ये विजन क्या है? विजन है हमारा कि हम एमएसएमईज के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स और प्रोसेस को इंप्रूव करें,
उससे उनकी हम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं और उन्हें हम सस्टेनेबल बनाते हुए ट्रांसफॉर्म करें नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियंस के रूप में। यानी जेड का मकसद है हमारे एमएसएमईज को इंप्रूव करना और उनको कॉम्पिटिटिव बनाना ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियंस के रूप में उभर कर आए। सो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, तो आपको पता है कि आप जेड के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, किसी एमएसएमई से बात करें, तो आपका उद्देश्य क्या है? आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं, उसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं, उसको एक चैंपियन बनाना चाह रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। आप लोग सिर्फ एक सर्वेयर नहीं है, एक सिर्फ रिसोर्स नहीं है जो ग्राउंड पे जाके एक सर्टिफिकेशन आपको करवाना है, वैसा नहीं है। आपका मकसद इससे बहुत बड़ा है। आप लोग इस नेशनल इनिशिएटिव में एक अहम हिस्सा निभाने वाले हैं, तो आपका रोल बहुत अहम हो जाता है, राइट? So vision here is to improve MSME manufacturing systems and process. Please remember this always. It is to enhance MSME competitiveness, make them sustainable, and transform them into national and international champions. So it means that we are required to ensure that our MSMEs improve and become champions, right? So this is your role. You are not just a person or a resource to, go for uh, going to get a particular MSME certified. It is beyond that. It is basically to help them improve and thereby helping the nation in becoming Atmanirbhar or self-reliant, helping the nation in uh, creating a mark that whatever products are manufactured in the country, they are basically of high quality. So please remember, your role is much bigger than just being a resource on ground who's trying to convince an MSME to go for certification. It's not convincing for certification, it's convincing them to adopt zero defect practices and become a champion, right? So that is your broader role, and you all should take pride in this fact that you are basically one of the stakeholders in this particular scheme of things. Now coming to the objectives, right? What are the objectives of this scheme? So obviously, as we just saw, it's about competitiveness, enhancing their capabilities, and so on. Now, who are these MSMEs who can participate in the Z certification program? So basically, the MSMEs who can participate in the Z certification program, they need to have Udyam registration, right? So they should have Udyam number. Now, if they do not have Udyam registration number, you should know that they can register on Udyam. They can go on the champions scheme or the Udyam portal, and they can get themselves registered, and then they can participate in the Z certification program. Now, moving further, the scheme was launched in 2 phases. The first phase was for the manufacturing sector, and we are currently in the manufacturing sector. And manufacturing sector means the MSMEs that are, manufacturing some kind of product. So please be very clear that you will be targeting, you will be approaching those MSMEs that are manufacturing, because right now we are in the first phase. Who are these manufacturing MSMEs? The manufacturing MSMEs, like someone is making nut and bolts, right? They're manufacturing nut and bolts. They may be manufacturing food products, but it should be packaged. It cannot be a restaurant or a catering house. So it has to be, if it is into food sector, they must be manufacturing and selling the product. Selling in the sense packaged, selling after packaging the product, right? So they will come under manufacturing, not the restaurant. Similarly, when it comes to, let's say, textiles, there may be, manufacturers who are manufacturing clothes for children, who are, manufacturing shirts or bed sheets and all those things. But please remember, in this, the tailors will not come because they are providing service. Now, these tailors could be, one person who's got a sewing machine. He takes orders, and then, you go to them, you give your measurement and get the cloth stitched. Now, this will not come under manufacturing, right? But if it is a boutique where, there is a, the owner is designing clothes, manufacturing them, and then selling them, that is where they will come under manufacturing. So there is a fine line. Please remember, in case you have
any doubt that the MSME that you have approached, whether it falls under manufacturing or services, do connect to your organization, the SPOC, and he will clarify this for you. Make sure that you do not register anyone who is not into manufacturing. This is very, very important, right? तो आप सबको ये चीज ध्यान में रखना है कि आप अभी हम करंटली फेज 1 में है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप लोगों को कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, बहुत आवश्यक है कि इसमें आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज को ही लेकर आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कोई छाता बना रहा है, कोई कप्स बना रहा है, कोई पेन्स बना रहा है, कोई नट बोल्ट्स बना रहा है, कोई फूड प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे अभी आपको हल्दीराम का वेफर्स मार्केट में मिलता है, राइट? आपको बिस्किट्स मिल गए, ब्रेड मिल गया। ये सारी चीजें जो ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। लेकिन जो लोग इनको बेचते हैं दुकान में रख के, वो सर्विस सेक्टर में नहीं आएंगे। अब हल्दीराम की भुजिया आप देख रहे हैं, या हल्दीराम के कचौरियां आप देख रहे हैं, वो बेच रहा है, दैट इज समथिंग विच इज, अगर वो पैकेज करके जो बेच रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन यही हल्दीराम का जहां पे लोग बैठ के खाते हैं, जो उनके रेस्टोरेंट्स हैं, वो सर्विस सेक्टर में आएगा। तो होटल्स जो हैं, जो कि जैसे कोई समोसे बना रहा है या कोई मिठाइयां बना के बेच रहा है, दुकानें जो हैं, वो सर्विस सेक्टर में आती है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें बड़ा ही फाइन लाइन है। तो अगर आपको कहीं पे भी शक है कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो ऐसे में आप अपने स्पॉक से बात करके कंफर्म करेंगे, और कोई भी सर्विस सेक्टर का एंटरप्राइज आप इसमें रजिस्टर नहीं करेंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक एग्जांपल है कि बुटीक शॉप है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, लेकिन टेलर है, जो आप जिसके पास कपड़े लेके जाते हैं, उसको मेजरमेंट देते हैं, वो सिल के देता है, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। तो इस तरह की आपको बुनियादी जो चीजें हैं, ये इसमें आपको समझनी होंगी, ताकि आप कोई गलत तरह की एमएसएमई, गलत तरह की इन द सेंस जो इसमें एलिजिबल नहीं है, नॉन एलिजिबल एमएसएमईज को आप इसमें रजिस्टर ना करवा दें। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो प्लीज रिमेंबर, currently we are in phase 1, which is only for manufacturing MSMEs. Now coming to understand the role of Z facilitators. तो पहले आपको बता दें कि आप लोग क्या नहीं है, what you are not. You are not assessors. Okay, so never ever claim that you are an assessor. Assessor is someone who actually carries out the assessments and recommends certification. That is not your role. For assessors, there is a separate eligibility criteria. For assessors, there's a separate requirement, and therefore you guys are not assessors. Number 2, you guys are not consultants as well. तो आप consultants भी नहीं है, ना आप assessors हैं, ना आप consultants हैं. And you are also not an employee of QCI or the ministry. So you will never claim that you are a QCI employee or a ministry employee. You are basically a Z facilitator. Z facilitator means you are there to assist MSMEs understand what Z is all about, explain them the benefits of Z, onboard them, and help them in the certification, right? So that is something which is your role. And secondly, you are deployed by the organizing partners and panel with Quality Council of India. So if someone says, who are you, from where you are coming, you will tell that you are working with XYZ organizing partner, which is an empaneled agency with Quality Council of India for propagation of Z certification. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप QCI के एम्प्लॉई हैं, मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई हैं, आप कहेंगे नहीं, आपको ऑनेस्ट रहना है, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी मोर रेस्पेक्टेड इफ यू आर ऑनेस्ट। आप उनको बताइए कि आप Z फैसिलिटेटर हैं, आप उनके Z के बारे में उनको जानकारी देने आए, आप उनको मदद करने आए कि वो Z सर्टिफिकेशन प्राप्त करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, सरकार के इनिशिएटिव का वो हिस्सा बन सकते हैं। और आप QCI के साथ एम्पैनल्ड ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर जो भी हैं XYZ, आप उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है, कभी भी आप कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे कि आप मिनिस्ट्री या क्वालिटी काउंसिल के एम्प्लॉय हैं। सो बी वेरी क्लियर, यू आर a Z facilitator, number 1. Number 2, you are a part of the organizing partner, not QCI or ministry. But please remember, आपके कोई भी actions होंगे, any actions that you carry out on the field, that will have a bearing on Quality Council of India or the ministry. आप कोई गलत काम करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट इस पूरी स्कीम पे पड़ेगा, QCI और
मिनिस्ट्री के ऊपर, और इसलिए ध्यान में रखें कि कोई भी गलत प्रैक्टिस, कोई भी माल प्रैक्टिस बहुत ही स्ट्रिक्टली डील की जाएगी। तो इसको आप ध्यान में रखें, और मुझे नहीं लगता है कि इस काम को करने के लिए आपको कोई माल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, आप लोग इसमें प्राइड लें, आप इसमें गर्व महसूस करें कि आप देश के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का आप हिस्सा बन रहे हैं, और आप इसमें एमएसएमईज को बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। तो इसमें कोई शॉर्टकट, कोई माल प्रैक्टिस की गुंजाइश नहीं होती है। तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नंबर वन, you have to register MSMEs on the Z portal. So you will go on the ground, you will approach the MSMEs, you will register them, you will help them to register on the Z portal for Z certification. You will also help them in applying for Z certification by uploading the correct document or evidence for relevant Z certification. So you would help them, you will tell them what are the requirements to get Z certified and how they can correctly upload those evidences, right? तो आपके तीन मुख्य रोल हैं। एमएसएमई शुड, यू हैव टू हेल्प द एमएसएमई, आप एमएसएमई को जेड पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए मदद करेंगे, उन्हें जेड सर्टिफिकेशन के अप्लाई करने के लिए मदद करेंगे, और उस प्रोसेस में आप उनको सही डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करें, जो एविडेंस हैं, जो फोटोग्राफ हैं, वो आप उसमें उनकी मदद करेंगे। ये तीन आपकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन इसके साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पहुंचे, 10 मिनट में आपने उसको समझाया, सारे उसके फोटोग्राफ्स आपने अपलोड कर दिए और आप वहां से निकल गए। नहीं, इसका आउटकम होना चाहिए कि जब आप किसी एमएसएमई के पास जाते हैं तो उसके पास जो आप समय बिताते हैं, उसको जेड के बारे में समझाते हैं, तो हम मेजरली 5 आउटकम्स देखते हैं यहाँ पे। इसमें 4 लिखे हैं, 5वां मैं आपको बताऊंगा। सो पहला है कि एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में उसको जानकारी हो। जेड क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है, ये स्कीम क्या है, किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है, ये पता होना चाहिए। इस स्कीम में कितने लेवल सर्टिफिकेशंस के हैं? इसमें 3 लेवल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। एमएसएमई को क्लियरली पता होना चाहिए। उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? जेड अगर ब्रॉन्ज का सर्टिफिकेशन ले रहे हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जेड प्रैक्टिसेस क्या है, और जो भी इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं, वो उन्हें पता होना चाहिए कि जेड सर्टिफिकेशन लेने के बाद मुझे क्या क्या सरकार की तरफ से फायदे मिलेंगे। और 5वीं चीज, उनके मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे जेड एमएसएमई ऐप जो है, क्योंकि उसी के द्वारा वो फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे, वो क्लियरली अपलोड होना चाहिए। ठीक है, उनके मोबाइल पे वो ऐप होना चाहिए। तो ये 5 आउटकम्स आपसे एक्सपेक्टेड है। सो नाउ you all, as I've explained, key responsibilities, you know, 3, but you have to do more than just, getting someone certified in 10-15 minutes, uploading their documents. What you have to do is you have to make sure that MSMEs are, once you touch an MSME, when you talk to them, you get someone certified on Z, they must be aware about what this scheme is all about. What is zero defect, zero effect? What does that mean? Also, they should know how many levels of certification are there. There are 3 levels. They should be aware what are these levels. They should be aware what are the requirements for them. And largely because you all will be helping MSMEs certify for Z Bronze, you should be aware that you have to help an MSME know the requirements of Z Bronze certification, and also all the benefits and incentives that come as part of the scheme. The MSME should be aware about that. And 5th one, which is not mentioned here, is you should ensure that the MSME downloads the Z MSME mobile app on their smartphones, because ultimately they have to upload the photographs. Although you can download the app on your smartphone and you can do it for them, but what is required is you tell them that this is an app which is user friendly. You can very quickly upload yourself. And why it is important is because once they download the app, they will be able to log in anytime. They will be able to see all the communication in the app. So therefore, please remember, number of certifications that you bring in must be equal to number of Z app downloaded on the MSME's
मोबाइल नंबर्स। तो आप लोगों का जितना भी सर्टिफिकेशन है वो इक्वल टू होना चाहिए कि कितने एमएसएमईज ने, जितने भी, अगर आपने 10 एमएसएमई को सर्टिफाई कराया है तो 10 डाउनलोड्स होने चाहिए इस ऐप के। तो ये चीज आप लोगों को बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है। सो दीज आर certain things that you are supposed to do. Now there are certain don'ts, right? Very clear no, right? So one, there should be no financial transaction. You will not ask for any favors, financial or otherwise. आप किसी भी तरह का financial favor या कोई और favor MSME से नहीं लेंगे या उसके बारे में कोई जिक्र चर्चा या कुछ भी नहीं मांगेंगे। ये पहली चीज है, बहुत ही क्लियर रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आप फायर एक्सटिंग्विशर खुद से इंस्टॉल नहीं करेंगे। एमएसएमई के पास उसका खुद का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आप ये नहीं करेंगे कि आप डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फोटोग्राफ का, कि अभी एमएसएमई कहता है कि यार मेरे पास तो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, मैं पड़ोसी के यहाँ से लाता हूँ, आप फोटो उसका अपलोड करने दीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर किसी के पास कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, उसको बता देंगे कि ये जब आप कर लें उसके बाद आप हमें बताएं और हम हेल्प करेंगे। और फाइनली पुअर ग्रुपिंग, आपका पहनावा, आप जिस तरह से जो भी आप पहन के आते हैं, ये नहीं कि आप कोई भी टी शर्ट पहन के चले गए, कोई भी आप जीन्स में चले गए। आप प्रॉपर क्लोथिंग में रहेंगे, प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ जाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो डोंट्स में, financial transaction, there should be no financial transaction. You should not install fire extinguishers on your own, or you should not allow manipulation of fire extinguishers or any other evidence. Like, for example, the MSME may say that he doesn't have a fire extinguisher and he can get it from his neighbor, and he will request you to allow for the upload of the photograph. Do not allow that. The MSME is required to have its own fire extinguisher. So please remember, no manipulation, no shortcuts. And then finally, you should not be in, improper dress code. When I say improper, you should not be into casuals going with jeans, or your, top two buttons are not tucked, and all those things should not happen, right? You should go like a professional because you are representing a scheme of national importance. So these are some don'ts that you have to always bear in mind, and you should not compromise with these. Certification process. There are 3 levels. I'm sure you all know: bronze, silver, and gold. And the process remains largely same. The MSME has to register, then they have to take their pledge. They have to give an undertaking of compliances that they will follow the legal requirements, and then they have to upload the photographs in terms of evidence. And once they upload the photographs, for bronze, it goes to an assessor, and assessor will recommend for certification. And now, in case, let's say the photograph is incorrectly uploaded, there may be a non-conformity raised, and MSME gets 30 days, 30 days to close the non-conformity, and they get 5 attempts to do so. Like in 5 attempts, they will have to close it. For silver and gold, the process remains almost the same, except that there is an on-site assessment. Yani ki, silver and gold, there would be an assessor or team of assessors who will go to the unit of the MSME. They will carry out an assessment. Based on the findings, they will give the recommendation for certification. Now, if let's say there are non-conformities raised, then for silver and gold, MSME will get 60 days to close the non-conformity, and attempts remain 5 attempts to clear them, right? On it, and another thing is, this on-site assessment for silver is basically on-site, means at the unit it will be 1 day, but total number of days that are allocated for on-site assessment for silver is 2 days. 1 day is for desktop assessment and 1 day is for on-site, that is at the unit. And for gold level, it is 3 days, 3 man days at the unit and 1 man day for desktop. So total for gold, it is 4 man days, out of which 1 is for desktop assessment and 3 days is on site. And for silver, it is 2 days including desktop, right? So that is how the assessment duration for silver and gold is put up. तो आप सबको एक बार मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ
कि प्रोसेस लगभग सेम है। जेड में आप लोगों ने जिसने काम किया, आपको पता है कि प्लेज दिया जाएगा, अंडरटेकिंग ऑफ कंप्लायंस देंगे, उसके बाद फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे, उसके आधार पे एमएसएमई जो है, जो असेसर है वो एमएसएमई को सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड करेंगे। और अगर फोटोग्राफ कोई गलत अपलोड हुई है, सही नहीं है, रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, तो उसको 30 दिन का समय मिलेगा क्लोज करने के लिए। और 30 दिन के अलावा 5 अटेम्प्ट मिलेंगे नॉन कंफर्मिटी को क्लोज करने के लिए। 5 अटेम्प्ट यानी एक बार सही अपलोड नहीं कर पाया तो दोबारा एक मौका मिलेगा, फिर तीसरी बार, इस तरह से 5 मौके मिलेंगे। सिल्वर और गोल्ड में फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद ऑन साइट असेसमेंट होता है, यानी फिजिकली एमएसएमई के यूनिट पे जाकर असेसर्स जो हैं वो असेसमेंट करेंगे और जो भी फाइंडिंग्स है उसके आधार पर सर्टिफिकेशन रिकमेंड करेंगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, नॉन कंफर्मिटी रेस होती है, तो सिल्वर और गोल्ड पे 60 दिन का समय मिलता है और अटेम्प्ट्स ब्रॉन्ज के बराबर ही है, जो कि 5 दिन का होता है। और ऑन साइट असेसमेंट जो है सिल्वर में भी वही प्रोसेस है कि फोटोग्राफ अपलोड होगी, उसको असेसर चेक करेंगे, उसके बाद फिर एमएसएमई जो है वो एक डेट लेंगे जिस पे असेसर जाके वहां पे असेसमेंट करेंगे। तो जो डेस्कटॉप असेसमेंट के साथ जो ऑनसाइट असेसमेंट का समय है वो 2 दिन का है, यानी एक दिन डेस्कटॉप के लिए और एक दिन यूनिट पे जाकर असेसमेंट होगा। और गोल्ड के लिए ये एक दिन डेस्कटॉप है और 3 दिन जो है वो ऑन साइट होगा, यानी कुल मिला के 4 दिन यहाँ हो गए, और 2 गोल्ड के लिए और 2 दिन सिल्वर के लिए। तो ये बेसिकली असेसमेंट का प्रोसेस है। और जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स की या रिक्वायरमेंट्स की, तो ब्रॉन्ज जो है उसमें 5 पैरामीटर्स हैं जो आप लोग को लार्जली पता होगा। लीडरशिप, स्वच्छ वर्क प्लेस की बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह। सिल्वर पे 14 पैरामीटर्स हैं और गोल्ड पे 20 पैरामीटर्स हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्रॉन्ज पे बुनियादी चीजें आती हैं, 5 ही पैरामीटर, रिक्वायरमेंट बहुत कम है, जिसको जो भी यूनिट थोड़ी सी जागरूक है, थोड़ा ढंग से काम कर रही है, वो आसानी से फुलफिल कर सकती है और 24 घंटे के अंदर ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकती है। सिल्वर और गोल्ड जैसे मैंने बताया, उसमें फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद जब वो डेट लेंगे, उस पर असेसमेंट होगा, उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा। अब आते हैं हम जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन। तो आप लोगों का बेसिकली मेन जो टारगेट है दैट इज ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन। सो योर की गोल इज ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन, राइट? Although you can identify who are good enough for silver and gold, and then you can also recommend it to them. But please remember, when we say 3 levels of certification, it's not necessary that an MSME has to necessarily go for bronze first and then silver and then gold. An MSME can apply at any level, whether it is bronze, silver, or gold, any level that they feel that they can fulfill the requirements, they can do so. तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप सबको पता भी होगा कि एमएसएमई जरूरी नहीं है कि वो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन लेगा तभी आगे जा पाएगा। एमएसएमई जिस लेवल पे जाना चाहे उस लेवल पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन आप सब उनको ये बता सकते हैं कि आप ब्रॉन्ज अगर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग जो आप एक चीज कर सकते हैं। अब ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन का क्या फायदा? पहला चीज, आप सबको पता है ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन 0 कॉस्ट है, इसमें कोई भी फीस नहीं लगनी है, क्योंकि उनको एक 10,000 का ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिल जाता है और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन इज 0। दूसरी चीज, अगर सही तरीके से फोटो अपलोड होती है तो 24 घंटे के अंदर उनको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। सो इट मीन्स दैट अगर आप सही तरीके से अपलोड कराते हैं, व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट इज दैट इफ यू गो टू एनी एमएसएमई and you are helping them to upload photographs, there should be no error and they should get the certification within 24 hours, because it will save your time and energy. It will also save the assessor's time, right? And it will also help the MSME become certified quickly. And then there are multiple benefits and incentives. अगर आप benefits और incentives सही तरीके से बताएंगे, if you explain them better in a proper manner, these benefits, no MSME will usually say no to the certification. And secondly, when it comes to document upload, you know it is on the mobile app, and this is how the screen looks like. They have to just click on each of these and upload a photograph. Now, this is the same, parameters, number of parameters which is there. Now, see, many MSMEs have certain certifications which are already there, which are listed on the screen, ISO 9001 or 45,001 and all those. Now, if an MSME has any of these certifications, so they will get a waiver on the assessment. So for example, let's say ISO 45001 parameter number 3. So parameter number 3 is workplace occupational safety. So now in case an enterprise applies for Z Silver certification, now there are 14 parameters, right?
So they will have an assessment on all 14. But if let's say they have ISO 45001 certificate, in that case, they will have to undergo assessment only on 13 parameters. Workplace occupational safety will be waived off, right? So that is a benefit if they have this certification. However, please remember ISO is not mandatory for Z certification. If someone doesn't have Z ISO certification, they can still get the Z certification, right? So please remember this. But if they have those certificates, they will get some small benefit in terms of waiver. तो ये चीज अगेन आप लोगों को समझाना चाहूंगा मैं हिंदी में भी कि देखिए ये जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे जो लिखे हैं कि आईएसओ के सर्टिफिकेशंस हो गया, लीन का सर्टिफिकेशन हो गया, अगर किसी एमएसएमई के पास पहले से है तो उनको इसके ऊपर एक वेवर मिलेगा। वेवर यानी जैसे हम पैरामीटर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आईएसओ 45001, अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट है और वो जेड सिल्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जेड सिल्वर पे साधारणतः उनका 14 पैरामीटर के ऊपर असेसमेंट होगा। लेकिन उनके पास चूंकि पैरामीटर नंबर 3 के लिए एक सर्टिफिकेशन है, तो अब उसका असेसमेंट जो है वो 14 पैरामीटर पे ना होकर सिर्फ 13 पैरामीटर पे होगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला जो है वर्क प्लेस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये एक फायदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईएसओ या लीन जो है वो मैंडेटरी है जेड के लिए। अगर किसी के पास आईएसओ का सर्टिफिकेशन नहीं है तो भी वो जेड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आईएसओ मैंडेटरी है क्या, तो मैंडेटरी नहीं है। किसी के पास अगर है तो उसको एक छोटा सा फायदा मिल जाता है वेवर के रूप में। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। Now coming to the benefits and incentives. Now this is something that you need to listen very carefully, right? So you have to tell the MSMEs that as in any system, there would be some benefits, right? There may be, their quality will improve because we are talking about zero defect. Their impact on environment will reduce because we are talking about zero effect. They will be seen as a responsible enterprise, of course, because they are Z certified MSMEs. They will be seen as responsible enterprises. But one of the biggest benefits is that their name would be published on the Z website, which is government's website. So it will improve their brand credibility, right? Their visibility. It will probably help in getting more business. So this is something that you need to really highlight to any MSME that you reach out to. Okay. So this is the first big benefit. तो आप लोग पहला जो बेनिफिट आप बताएंगे एमएसएमई को, आप तो बताएंगे ही कि ठीक है जेड आप लेंगे क्योंकि जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी। जीरो इफेक्ट की बात करते हैं तो आपका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा, लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी की तरह देखेंगे। बट इसके अलावा एक बड़ी चीज आप उनको बताएंगे कि जब वो जेड सर्टिफाइड होते हैं तो उनकी जो जेड सर्टिफिकेशन की वजह से इनका नाम जो है जेड की वेबसाइट पे आएगा, पब्लिश होगा, और इसकी वजह से उनके ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि सरकार की वेबसाइट पे ये उनका नाम आ रहा है। तो इसलिए आप उनको ये बताइए कि जेड की वेबसाइट पे आपका नाम आएगा तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनको कोई सप्लायर चाहिए तो वो जेड की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपके लिए बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप जरूर बताइए कि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि आप एक सरकार के वेबसाइट पे आपका नाम आएगा, जिससे लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा और आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू अदर बेनिफिट्स। अभी कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन अगर देखेंगे तो ये 10,000 रुपए जो है ये आपका जो कॉस्ट है, दिस इज समथिंग विच इज फॉर जेड सर्टिफिकेशन। जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट मुझे दीजिए जरा। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू, एक मिनट का समय दीजिए। मैं आप थिंक आई नीड टू, ओके सो यस, तो ये आपने देखा यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन है, ब्रॉन्ज का 10,000 है, सिल्वर का 40,000 है, गोल्ड का 90,000 है। अब इसमें this is all inclusive, so these costs of certification, the fee is all inclusive of taxes and everything, and therefore you don't have to
ask for any extra money or anything. Whatever has to be paid, it will be paid through the portal only. Now, bronze, आपको पता है, there is a joining reward because of which it becomes completely free. Second thing is for women entrepreneurs, अगर women owned MSME है तो उसको ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड तीनों फ्री हो जाता है. तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज है कि आप अगर किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को आप पूछेंगे पहले कि आपका ये एमएसएमई क्या किसी महिला द्वारा ओन किया जाता है, तो इफ इट इज अ वुमन ओन एंटरप्राइज, आप उसको बताएंगे कि आपके लिए आप सिल्वर पे भी जा सकते हैं, गोल्ड पे भी जा सकते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा. लेकिन आप ब्रॉन्ज से शुरुआत करें क्योंकि आपको थोड़ा सा सिस्टम समझ में आएगा, फायदे आपको तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर आपको सर्टिफिकेशन हो जाएगा. राइट. दूसरा चीज, इसमें सब्सिडी है 80% माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, 60% स्मॉल के लिए और 50% मीडियम के लिए. यानी अगर हम सिल्वर की बात करें तो अगर सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज है लेट्स से, तो 40,000 में से 80% सरकार पे करेगी, 20% एमएसए देना है. यानी एमएसएमई सिर्फ 8,000 रुपए देके जेड का सर्टिफिकेशन ले सकती है. उसके अलावा अगर ये एमएसएमई SC/ST एंटरप्रेन्योर के द्वारा ओन किया जाता है या एनईआर रीजन में है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है एंड सो ऑन, दे विल गेट एडिशनल 10%. यानी कि उसको 8,000 की जगह सिर्फ 4,000 में जेड का सर्टिफिकेशन सिल्वर का मिल जाएगा. प्लस अगर वो एमएसएमई का स्फूर्ति स्कीम या एमएससी CDP का पार्ट है तो उनको एडिशनल 5% मिल जाएगा. यानी कि दे गेट अ 95% डिस्काउंट, यानी 2,000 में जेड सिल्वर का सर्टिफिकेशन भी उनको मिल जाएगा. और प्लीज रिमेंबर, जेड सर्टिफिकेशन ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड तीनों का वैलिडिटी 3 साल का है. तो यानी 3 साल के लिए एमएसएमई जो है उसको इतने कम फीस को पे करने के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसमें 3 साल तक सरकार के वेबसाइट पे उनका नाम रहेगा, जिससे उनको ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, रिकॉग्निशन मिलेगा. तो ये सारी चीजें हैं. तो ये एक उनको बड़ा फायदा है कि उनको अप टू 100% टेक्निकली जो है उनको बेनिफिट मिलता है. और जब आप ब्रॉन्ज के लिए लार्जली जाएंगे तो ब्रॉन्ज तो सभी के लिए फ्री हो जाता है ज्वाइनिंग रिवॉर्ड की वजह से. नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स, तो अभी आपको और चीज, जो जब आप एमएसएमई के पास जाते हैं आप उसको पहले देख लीजिए कि एमएसएमई का आपके पास कोई ISO का सर्टिफिकेट है जो NABCB द्वारा दिया गया है, उनके सर्टिफाइड एक्रेडिटेड एजेंसी के द्वारा दिया गया है, या वो अपना कोई प्रोडक्ट का टेस्टिंग कराते हैं NABL एक्रेडिटेड लैब के द्वारा, या वो BIS का उनके पास लाइसेंस है या प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है. अगर इनमें से कोई भी एक है उनके पास, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो भी खर्चा किया है उनको अप टू 75%, मैक्सिमम 50,000 तक उनको 7 से 10 दिन के अंदर रिम्बर्समेंट मिल जाएगा अगर वो जेड सर्टिफाई हो जाते हैं. तो ये एक बड़ा फायदा है. तो ये आप जब भी किसी एमएसएमई के पास जाते हैं, ये पहले सवाल एक पूछ लीजिए कि क्या आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन या टेस्टिंग है. सो हियर whenever you go to an MSME, please check that whether they have an ISO certification, which is given by a certification body that is accredited by NABCB, or they get their products tested through NABL accredited lab, or they have a product certification or license from BIS. If they have it, you tell them that you take Z bronze without paying any money, and you will be able to claim up to 50,000 rupees against the expenses that they have made. So this is something where you quickly convert someone into a Z certified organization. They will quickly say yes. Second benefit is hand holding support. Now when someone says I'll take bronze, but to go to silver and gold I want to do that, but I cannot do it alone, I need some support. So you can tell them that there is a provision of consultancy. You can get consultants who will help you to train your people, who will help you to establish the processes and help you meet the requirements of Z, silver and gold, whatever you desire. And the fee for handholding is 2 lakh rupees. But again, the government has given subsidy of 80%, 60% and 50%. So if someone says, I want to go to silver or gold, you tell them that, see, you can go to these certifications, but before that, please go through the Z standard. If you think you fulfill those requirements, then you go ahead with that. But in the meanwhile, start with Z bronze. Within 24 hours, you'll get certified, right? Next thing is, if the consultants, they recommend that the MSME needs to purchase some kind of a zero effect solution, like for example, something that is some equipment that can reduce the pollution or that can help them conserve energy, like solar panels or pollution control device, then if MSME purchases based on the recommendation of the consultant, they can get additional 3 lakh rupees
against the expenses that they make. So for bronze, without paying a single penny, MSME gets a benefit of up to 5.5 lakh rupees, right? And if they have multiple units, for every unit they can get it. So benefits are huge, right? So this is something that you need to tell the MSMEs. तो पहला चीज जब आप बताएंगे कि 50,000 रुपए तक का तो आपको सर्टिफिकेशन के ऊपर मिल जाएगा, अगर कोई MSME है, BIS का लाइसेंस वगैरह, 50,000 रुपए वहां मिल जाएगा। NABL का टेस्टिंग है या NABCB एक्रेडिटेड एजेंसी का है, 50,000 वहां मिलेगा। दूसरा, आप उनको बताइए कि अगर आप आगे ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर या गोल्ड पे जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता है, तो इस स्कीम में कंसल्टेंट का भी प्रोविजन है जिसकी फीस 2 लाख रुपए है, लेकिन उस पे सब्सिडी है 80%, 60% और 50% माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए। यानी कि बहुत ही कम कॉस्ट पे उनको 2 से 3 महीने के लिए कंसल्टेंट की टीम मिलेगी, और ये टीम जो है उनको जेड, सिल्वर या गोल्ड पे जाने के लिए उनको हेल्प करेगी, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा अगर कंसल्टेंट रेकमेंड करेंगे कि आप कोई जीरो इफेक्ट सोल्यूशन लें, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल का कोई डिवाइस हो या एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोई उपकरण हो, और MSME उसको खरीद लेती है जेड कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन पे, तो 3 लाख रुपए जो भी खर्चा करेंगे उस पर 3 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से उनको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा उनके एक्सपेंस के अगेंस्ट में। तो यानी कि जेड सर्टिफिकेशन अगर वो ब्रॉन्ज पे लेते हैं, जिसपे उनको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, उस पे उनको 5.5 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाता है, इमीडिएटली वो एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस अगर मल्टीपल यूनिट्स हैं तो हर यूनिट के लिए वो ये बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको MSME को बताना है, और ये जब आप इस तरह से फायदे बताएंगे तो आई एम श्योर दे विल से यस। उसके अलावा रेलवेज, अगर कोई MSME रेलवे से अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उस पर भी कंसेशन है। देयर आर बैंक्स, करीब 17 बैंक्स हैं जिन्होंने कंसेशन प्रोसेसिंग फी पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अनाउंस किया है फॉर जेड सर्टिफाइड MSMEs, वो उनको मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लाइक उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है। दीज स्टेट्स हैव अनाउंस्ड स्पेसिफिक इंसेंटिव्स फॉर जेड सर्टिफाइड MSMEs। तो बहुत सारे, हमारे करीब 17 से 18 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने जेड सर्टिफाइड MSMEs के लिए इंसेंटिव्स डिफाइन किए हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी जेड सर्टिफाइड MSMEs को मिल सकते हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज, जब आप जाते हैं तो आप जेड का ब्रोशर सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में डाउनलोड कर लें और वो लेकर जाएं। और स्टेट गवर्नमेंट, आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस स्टेट गवर्नमेंट में सरकार क्या क्या फायदे दे रही है, आप वो भी जब उनको बताएंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू बिकम अ जेड सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। All the information is available on the Z website. This is the Z website. I'm sure you all know, www.zed.msme.gov.in. It is full of information. You can get all the information that I'm talking about. Z certificates are also available on DigiLocker. You can also tell this to the MSME. They will get more confidence that, okay, this certificate is something which it comes on DigiLocker, and this is from the government, right? So that is about the benefits. Now coming quickly to application process. I'm sure most of you know the application process, but please remember certain things that you need to bear in mind. This is the website on which registration can be done. It can be done through mobile app also. And mobile app is available on Google Play Store as well as iOS App Store, that is Apple App Store. तो जेड पोर्टल से आप कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, या मोबाइल ऐप के द्वारा आप कर सकते हैं जेड का रजिस्ट्रेशन। दूसरा, आपको ध्यान में रखना है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो मैंडेटरी है, बिना उद्यम के MSME कैन नॉट रजिस्टर। उसके बाद एक उद्यम में मल्टीपल यूनिट्स और प्लांट्स हो सकते हैं, तो सभी को अलग अलग रजिस्टर करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एड्रेस यूनिट्स के अलग अलग होने चाहिए। एक ही एड्रेस अगर अलग अलग यूनिट्स का है तो आप उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, सिर्फ एक यूनिट को करेंगे। सो प्लीज रिमेंबर, देयर कैन बी मल्टीपल यूनिट्स विद इन सिंगल उद्यम and you can register them separately provided their addresses are different. So make sure if there are multiple units, don't get excited and start registering one by one. First check whether addresses are different. If addresses are different, then only you register. Otherwise, if it is same address, register only one unit. This is very important. Next one is check the name of the unit properly during the registration. And do not initiate the registration if the name is mentioned mentioned, whatever name is mentioned. Let's say name is XYZ Enterprises, but
when you see the name board of the organization, it says ABC. If the name doesn't match, make sure you are not registering the unit. तो यानी कि अगर आप जब भी किसी यूनिट पे जाते हैं, आप उसका नाम प्रॉपरली चेक कर लें. अगर उद्यम पे जो नाम लिखा हुआ है और प्लांट के जो यूनिट है उसके नेम बोर्ड पे या उस पे दूसरा नाम है, तो आप उसको रजिस्टर नहीं करेंगे. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर एमएसएमई कहता है कि मेरा नाम बदल गया, कुछ हो गया, आप उनको बोलिए उद्यम पे करेक्ट करें, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अगर आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, उसका यूनिट का नाम आप देखते हैं एनए लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, कुछ रैंडम एबीसीडी लिख दिया है, कुछ है, तो आप उसको रजिस्टर नहीं करेंगे गलत नाम के साथ. उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए. उनको बोलिए कि उद्यम पे अपडेट करें, उसके बाद ही रजिस्टर करिए, अदरवाइज आप रजिस्टर नहीं करेंगे. So make sure that you are checking the name. Name should be properly mentioned on Udyam. If it is mentioned as something random or something, which is not a name, you will not proceed with the registration. This must be clearly understood. Next, during registration, check the NIC code of applicant MSME. So under manufacturing as well as services, I was talking about national industry classification code, right? So this is something which says which manufacturing activity is being conducted at the unit. So please make sure that it is the right NIC code. आप अगर NIC code सही नहीं उस पे मैप करेंगे, अगर आप देखते हैं कि NIC code तो उद्यम पे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए वो फूड का कोड है लेकिन वहां पे कपड़े बना रहा है, तो आप उसको बोलिए कि उस पे उद्यम पे भी अपना NIC कोड को करेक्ट करें, उसके बाद ही आप उसको रजिस्टर करवाएं. क्योंकि ये बहुत जरूरी है. और ये जो NIC क्लासिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, ये उद्यम के पोर्टल पर अवेलेबल है. इस पे आप क्लिक कर सकते हैं. यू विल गेट दीज इंस्ट्रक्शंस. यू कैन click on this and you will be taken to the Udyam portal. Next, the MSMEs need to enter working and valid email ID at the time of registration. So please make sure that it is MSME's email ID which is working. Check with them, is this email ID working? Because you will get all the information, ZID, password, and future communication on this email ID. Do not use your email ID. Do not give fake email IDs. Do not create email IDs. It must be MSME's email ID. ध्यान में रखिए, ईमेल आईडी जो भी होगा वो एमएसएमई का होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए. आप उनसे पूछ लें कि इसी पे कम्युनिकेशन आएगा, जेड का आईडी, पासवर्ड सब इस पे आएगा, तो क्या यही ईमेल आईडी है या आपका कोई दूसरा ईमेल आईडी? ये क्लियरली पूछ लें. आप अपना ईमेल आईडी नहीं देंगे, ध्यान में रखें. और कोई खुद से फेक आईडीज बना बना के आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे. अगर एमएसएमई के पास ईमेल आईडी नहीं है, आप उनको बताइए, आप क्रिएट करिए, आप उनको बनवा दीजिए उनका ईमेल आईडी, लेकिन वो ऐप उनके उस फोन पे डाउनलोड होना चाहिए. वो ईमेल का ऐप भी उनके फोन पे डाउनलोड होना चाहिए. और अगर उनके मान लीजिए ईमेल आईडी है और उनको ईमेल नहीं मिला, तो आप उनको स्पैम या जंक फोल्डर भी चेक करके पहले देख लें. कई बार उसमें भी चला जाता है. सो मेक श्योर दैट इफ they have a valid email ID but they do not receive, they may check the spam or junk folder. And as I mentioned earlier, do not register the units falling under service sector, right? Sweet shop, bakery, juice corner, tailoring, etc. should not be registered because they fall under service sector. And also make sure you are involving the MSME representative for uploading all the photographs through the app that is installed on their phone, right? And also before you leave, make sure that you tell them what is zero effect, what are the benefits, what are the requirements. Make sure that you are sharing all with that. So this is the website. This is where you can click to register the MSME. Alternatively, you can download the app. This is how, as you click on the register button, this is the screen that will come where Udyam validation happens. Now, this is what I was talking about, right? If the name is mentioned as NA, do not register. अगर NA, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नाम नहीं लिखा है, NA लिखा हुआ है, तो ये आप इसको यूनिट को सिलेक्ट, इसको आप रजिस्टर नहीं करेंगे. उनको कहेंगे आप नाम सही करिए, उसके बाद ही रजिस्टर होगा. जिसका सही नाम है उसको आप रजिस्टर करें. दूसरी चीज आप देखेंगे, पहली यूनिट आपने मान लीजिए रजिस्टर कर दी रेवती पेट इंडस्ट्रीज. अब मान लीजिए उसने तीसरी यूनिट में भी नाम चेंज कर दिया, कुछ और नाम डाल दिया, लेकिन अब आप एड्रेस देखिए, इसका फ्लैट नंबर 165 NK3, दिस इज ऑल्सो फ्लैट नंबर 165 NK3, यानी इसमें एड्रेस सेम है. तो ऐसे में आप सिर्फ एक ही यूनिट, उनसे पूछिए कौन सी यूनिट करें आपकी, ये रेवती पेट प्रोडक्ट्स या दूसरा, अगर नाम सही है
से पूछ के सिर्फ एक का करेंगे। तो मेक श्योर नाम सही हो और एड्रेस अलग हो, तभी मल्टीपल यूनिट्स में से आप मल्टीपल यूनिट्स को रजिस्टर करेंगे, अदरवाइज सिर्फ एक को करेंगे अगर आपका यूनिट का एड्रेस जो है वो सेम आता है। उसके बाद इस तरह से ईमेल आईडी आता है। तो ईमेल आईडी आप उनसे पूछिए कि कौन सा वैलिड ईमेल आईडी है, वो कंफर्म करेंगे और उसके बाद ही आप उस पे उसको एंटर करेंगे। जैसे मैंने बताया, अपना खुद का ईमेल आईडी या क्रिएट किया हुआ ईमेल आईडी आप यूज नहीं करेंगे। एंड देन यू गेट अ समरी, आपको एक तरह से समरी आती है एंड यू कैन एडिट इट हियर। If you do not edit here, any problem comes later on, you will have to call us, but make sure before you click proceed, you verify all the information. And this is the Z pledge. आप लोगों को ध्यान में रखना, ये Z pledge है। जब ये स्क्रीन पे MSME के आता है, उसके बाद वो सिर्फ बटन पे क्लिक करना है कि हम प्लेज ले रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये Z प्लेज आप पढ़ के उनको समझाएं कि ये जो प्लेज ले रहे हैं, ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो Z के वैल्यूज को कंफर्म करेंगे, उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो आप उनको हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनको समझाइए कि इस प्लेज का मतलब क्या है। दे शुड नो इट, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। मेक श्योर कि वो इसको आप उनको समझा रहे हैं और उसके बाद ही आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और ये Z प्लेज सर्टिफिकेट जनरेट होता है, तो आप उनको Z प्लेज बताइए कि Z प्लेज आपने ले लिया है, इसको भी वो प्रिंट करके लगा सकते हैं। अगर उनके पास प्रिंटर है, आप उनसे प्रिंट करवाइए और उनको कहिए कि अब आप इसको लगा लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप Z के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। So tell them that if they have a printer, get this certificate, this Z pledge printed and get it, put up somewhere, so that it keeps on reminding them that they are committed now to the Z certification, to Z practices. And then, once you log in again with the login credentials, Z ID and all, then you can, take them to the next process where Z application comes in, Z bronze, silver, and gold, right? So in any of these levels, you can click apply and you'll move ahead. But at this stage, if you're registering through the website, you will be alerted to download the Z mobile app. So here on, the process will be through the mobile app. तो अभी आप जो देख रहे हैं यहां तक तो आप वेबसाइट पे आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको MSME Z MSME ऐप डाउनलोड करना होगा, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं। तो एक सवाल था कि Z ID कहाँ से मिलेगी। तो ये जो हमने बताया कि जब ये ईमेल आईडी यहाँ पे डालेगी MSME, तो इस ईमेल आईडी पे Z ID अलग से जाएगा अलॉन्ग विद द पासवर्ड। तो यहाँ पे जैसे आप रेवती पेट प्रोडक्ट Z ID देख रहे हैं, ये Z ID है, ये आपको नोट करना है। यू विल हैव टू नोट दिस Z ID, दिस विल बी योर point of reference, right? This is something that you will use to claim a particular certification. Now we quickly come to the basic information and document upload. So this is the app that you have to get installed on the mobile phone of the MSME. ये आप MSME के मोबाइल पे इंस्टॉल करवाएंगे। आप अपने फोन पे भी कर सकते हैं, अगर MSME के पास स्मार्टफोन नहीं है आप मदद कर सकते हैं, बट कोशिश ये रहे आपकी कि वो MSME के मोबाइल फोन पे रहे। So this is how Z ID पासवर्ड आप डाल के लॉग इन करेंगे and you will move ahead. Just give me a moment, please. Okay, so once you log in, then you will go to required certification. Largely for you guys, it would be bronze. You click on this button and then you'll move ahead for information and document upload. So this is how you'll see the undertaking of compliance and certification requirements. Make sure that you read out all these in the language that they understand, so that they know what are the requirements of this certification, which is bronze. And once you explain, then only you click here and move further, right? तो यहाँ पे undertaking of compliance आएगा, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट स्क्रीन पे नजर आएंगी। आप ये पढ़ के उनको जिस भाषा में समझें उस भाषा में आप समझाइए, ताकि उनको पता रहे कि Z ब्रॉन्ज तो ले रहे हैं लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आप उनको ये समझाएंगे तो उनके समझ में आएगा कि ये सब चीजें अगर वो करेंगे तो उनकी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ती रहेगी। और जब ये आप समझा दें उसके बाद ही आप इसके आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं इंफॉर्मेशन की, कि MSME के रिप्रेजेंटेटिव की सेल्फी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी सेल्फी मत लीजिए, डोंट टेक योर ओन सेल्फी, इट मस्ट बी MSME सेल्फी। साइट के एक्सटीरियर की फोटो चाहिए। फिर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते हैं, हाँ या ना। प्रोडक्ट
का नाम, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स का नाम यहाँ पे लिखना है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब देना है। उसके बाद प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करनी है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका लेबल, ब्रोशर जो भी अवेलेबल है वो आपको उसकी फोटो अपलोड करनी है। Then some questions की domestic customers, की international customers, whether raw material is important। तो इन सब का आपको हाँ या ना में जवाब देना है। अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, तो जहां टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे टेक्सचुअल इनपुट है, जहां पे आपका ड्रॉप डाउन मेनू वगैरह है वहां पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। ये एक एक चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा। दिस इज हाउ, यहाँ पे तो मैं एक आपको शीट में हमने दिखा है क्या सवाल आते हैं, बट दिस इज हाउ, इस तरह से ये आपको स्क्रीन में नजर आएंगे। सो ऑल the information that I showed in the previous slide, they will appear on the mobile phone in this manner. Now the important things, site exterior, right? Make sure that the address, whenever you click a photograph, that you can capture up to 2 photographs here. So make sure you capture 2 photographs, one the close-up of the name board and another one is the building, right? So this should be visible. So if it is not clear, name board is not there, we will not accept. Also, please note that name board should be proper. If it is on, printed on a piece of paper and that is pasted, that will not be acceptable. तो आप ध्यान में रखें कि नेम बोर्ड प्रॉपर होना चाहिए। किसी पेपर पे प्रिंट करके चिपका दिया है वो नहीं चलेगा। कम से कम अगर कोई जेड पे सर्टिफाई हो रहा है तो कम से कम उसका नेम बोर्ड तो सही हो, राइट? क्योंकि आपको पता है कि हम एक इंपॉर्टेंट स्कीम की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान में रखें नेम बोर्ड प्रॉपर होना चाहिए। एड्रेस जो है, ये जो उद्यम पे आप जब रजिस्टर कर रहे हैं, उद्यम पे वही नाम होना चाहिए जो इस नेम बोर्ड पे हो। और फोटो आप एक थोड़ी दूर से खींचेंगे जिसमें पूरी बिल्डिंग नजर आए, और दूसरा एक क्लोज, ताकि उसका नाम जो है वो क्लैरिटी के साथ नजर आए। अप टू 2 फोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं। तो ये जब भी आप साइट एक्सटीरियर की फोटो खींचे तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब प्रोडक्ट फोटो आती है, आप एक्चुअल प्रोडक्ट का फोटो लेना है यूनिट पे, ठीक है? तो आप फोटो लीजिए प्रोडक्ट की। दूसरा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी अपलोड करना है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं अगर आप में से किसी से पूछूं ये प्रोडक्ट क्या है, तो शायद ही कोई बता पाएगा या बहुत कम लोग बता पाएंगे। तो ऐसे में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जरूरी हो जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, ताकि असेसर उसको समझ सके अच्छी तरह से और उसको अपलोड कर सके। तो इसमें आप प्रोडक्ट का लेबल की फोटो अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ब्रोशर की फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर उनके पास स्पेसिफिकेशन है, ये सब नहीं है, तो स्पेसिफिकेशन की फोटो अपलोड कराइए। अदरवाइज आप उसको उनका लेटर हेड पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप लिखवा सकते हैं, और उनका क्या, किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो लिखा के उसकी आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर आप करें, वरना अगर प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा तो नॉन कन्फर्मिटी रेज हो सकती है, ठीक है? और आपका एफर्ट जो है वो वेस्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स में ध्यान रखना है। एक्चुअल प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद की डोमेस्टिक कस्टमर्स, रॉ मटेरियल, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने बताया है। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो पहली फोटोग्राफ आप जो अपलोड करेंगे इसके आगे, वो है स्वच्छ वर्क प्लेस के हिसाब से। स्वच्छ वर्क प्लेस का मतलब है कि क्लीनलीनेस, साफ सफाई नजर आनी चाहिए, चीजें सही तरीके से जगह पे अपनी हो, वो समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें अब जितनी भी फोटोज हम आगे बात करेंगे जो अपलोड कर पाएंगे आप, वो अप टू 5 फोटोग्राफ्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप मिनिमम 3 तो अपलोड करिए, अदरवाइज आप 5 फोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हैं। आप इस तरह से फोटो अपलोड करिए कि उसमें मशीनें नजर आए, उसमें लोग काम करते हुए नजर आए, साफ सुथरी जगह हो। अगर आपको लगता है कि बहुत गंदगी है, चीजें इधर उधर ऐसे ही रखी हुई हैं, फैली हुई हैं, तो आप उनको कहिए इसको पहले सही कर लीजिए, उसके बाद हम फोटो अपलोड करेंगे। और फोटो अलग अलग एंगल से लीजिए, ताकि दूर से बैठे हुए असेसर को ये समझ में आ जाए कि वो एरिया कैसा है, वर्क प्लेस कैसा है, साफ सुथरा है या नहीं है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो वर्किंग एरिया, I'm sure all of you have understood. You have to take minimum 3 photographs. You can capture up to maximum 5. Take the photographs from different angles, capturing the machines, people working, and so on. And make sure that you are, if the area is not clean, haphazard, then tell them to clean, keep the things in an organized manner, then only take the photograph. The next requirement is of the staff toilet, outside and inside. Again, take as many photographs as you can, up to 5 photographs. You have to click the photographs from inside outside, अंदर बाहर से खींचनी है, minimum 3 photographs, maximum 5 photographs. और उसके बाद अगर टॉयलेट गंदा है, साफ नहीं है, तो आप उनको बताइए, पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद ही फोटो अपलोड करेंगे, क्योंकि उस अदरवाइज नॉन कन्फर्मिटी मिलेगा। और अगर स्टाफ टॉयलेट प्रीमिसेस में नहीं है, अगर वो कॉमन टॉयलेट
यूज करते हैं तो कॉमन टॉयलेट की आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक्सटीरियर के समय एक फोटो अपलोड करनी होगी, एक से एक सॉरी। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई फोटो जैसे हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एक आप बाहर से बिल्डिंग की फोटो या एक जो उनका बोर्ड लगा होता है जिसमें अलग अलग यूनिट्स के नाम लिखे हैं उसकी फोटो आप खींच लें और फिर कॉमन टॉयलेट की फोटो आप यहाँ पे लगाएंगे तो उस पर नॉन कन्फर्मिटी रेज नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टाफ टॉयलेट। दूसरा, अगर आपको लगता है कि वहां पे यूनिट पे महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट्स हैं, पुरुषों के लिए अलग हैं, तो दोनों की अलग अलग फोटोज आप ले सकते हैं, और लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वन इज पिक्चर ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया। तो जहां पे रॉ मटेरियल रखा जाता है उसकी भी आप फोटो लें। जैसे मैंने बताया था, अलग अलग एंगल से लें, थोड़ी दूरी से लें, ताकि पूरे एरिया का रख रखाव समझ में आए कि क्लीन कंडीशन में है कि नहीं, ऑर्गेनाइज कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखें। दूसरा, आप एमएसएमई को ये बताएं कि अगर एरिया पे जैसे रॉ मटेरियल है वहां रॉ मटेरियल लिखा होना चाहिए, वो सब उनको समझाएं कि ये गुड प्रैक्टिसेस हैं। आप वहां पे टैगिंग कर दें, टैगिंग करवा दें। अगर आपके प्रेजेंस में हो जाता है बहुत अच्छी बात है, उनको कहिए। आप अभी एक प्रिंट आउट लेके लगा सकते हैं उसको सिक्योर तरीके से, ताकि वो फटे नहीं और वो मेंटेन रहे। सो अगेन, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, मेक श्योर देयर आर as many photographs you can capture. Maximum is 5, minimum is 3. Take it from different angles, and so that the area could be visualized by the assessor properly. And also, if let's say you can also suggest that they can put a tag, raw material storage area, they can put raw materials, right? There is a tag, they can print it out, they can secure it with tape or something, so that and tell them to maintain this tagging in future. एंड सेम थिंग, जो फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया, तो रॉ मटेरियल हमने देखा। नाउ जो प्रोडक्ट बन गया है, डिस्पैच के लिए रेडी है, जहां पे स्टोर करते हैं, उस एरिया का भी आप मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 फोटोग्राफ्स खींचने, अलग अलग एंगल से खींचनी है, राइट? इसको भी अगर लेबलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप करवा दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास आएगा ISO 45001 सर्टिफिकेट का। तो जैसे मैंने बताया, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी के पास ISO का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, यू विल सी दिस रिक्वायरमेंट टू अपलोड दिस फोटोग्राफ, बट प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं है। अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, इफ समवन डजंट हैव दिस सर्टिफिकेट, click on no and move ahead. If they have, just click on add and upload the photograph. That's it. But this is not compulsory. ये compulsory नहीं है, आप ना करके आगे बढ़ सकते हैं। Now coming to the safety requirements. Fire extinguishers, please remember, you have to, if an MSME has multiple fire extinguisher, take photographs of different fire extinguishers, right? But every fire extinguisher, you make sure that pressure gauge is, visible. प्रेशर गॉज का मतलब ये घड़ी जैसा होता है, ग्रीन जोन और रेड जोन, वो दिखना चाहिए पूरा फायर एक्सटिंग्विशर, और डेट ऑफ फिलिंग एंड रीफिलिंग नजर आना चाहिए। सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट अलोंग विद द सीरियल नंबर, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी वॉल माउंटेड और प्लेस प्रॉपर्ली। देयर आर मेनी दैट आर केप्ट ऑन ग्राउंड आल्सो, तो उस तरह से लेना है, बट मेक श्योर that no one is holding the fire extinguisher in his hand and you are clicking the photograph. फायर एक्सटिंग्विशर हाथ में लेके किसी को अगर कोई फोटो खिंचवाना चाहता है, वो नहीं करेंगे आप। फायर एक्सटिंग्विशर वॉल माउंटेड हो, या अगर बड़ा है तो वो जमीन पे हो सकता है, रखा हुआ हो सकता है। हाथ में लेके अगर कोई फोटो अपलोड होती है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर गॉज नजर आना चाहिए, डेट ऑफ फिलिंग, रीफिलिंग, सीरियल नंबर, ये चीजें क्लियरली फोटो में कैप्चर होनी चाहिए। एक से ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर है तो आपके पास 5 फोटोग्राफ लेने तक का इसमें पॉसिबिलिटी है। आप अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स की फोटोग्राफ ले लें। और प्लीज मेक श्योर, एक सवाल भी आया था कि फायर एक्सटिंग्विशर का कितना कैपेसिटी होना चाहिए, तो मिनिमम 2 लीटर का होना चाहिए। 2 kg 2 लीटर्स जो भी है वो होना चाहिए, उससे कम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर अगर कोई कहता है कि मैं पड़ोसी के यहाँ से लाके लगा लेता हूँ, उसकी फोटो खींच लीजिए, नहीं करेंगे। आप खुद फायर एक्सटिंग्विशर लेके नहीं घूमेंगे, ये चीजें स्ट्रिक्ट नो नो है। प्लीज रिमेंबर, you will not carry fire extinguisher for certifications. If someone forces you, tells you, complain it to us, we'll take them to the task. Second, if someone offers you, hey, I'll get it from my neighborhood and I'll put it up, don't allow that. MSME is supposed to have its own fire extinguisher. Moving to the next one,
PPE kits, right? So please remember, PPE kits are something like this. So ideally, you must click the photograph when people are wearing PPE kits and they are working. So for example, if there is a welding happening, तो आप लोगों ने देखा होगा वेल्डिंग होता है तो फेस शील्ड होता है, गॉगल्स लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, तो वहां पे उसकी आवश्यकता है, तो उस तरह का होना चाहिए. अगर कोई जहाँ पे मान लीजिए फूड इंडस्ट्री है, वहां पे कोई सेफ्टी शू और हेलमेट लगा के काम कर रहा है, वो गलत है. उस वो फोटो आप लेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी. जहां पे जिस तरह का हजार्ड है उस तरह की फोटोग्राफ अपलोड होनी चाहिए. कोई मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे कील बन रही है या कोई टूल बन रहा है और वहां पे कोई हॉस्पिटल वाला सेफ्टी किट पहन के आ जाता है, वो नहीं एक्सेप्टेड होगा, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, पीपीई किट होना चाहिए, बट वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का खतरा है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में आप हेलमेट लगा के आपको चलाना है, राइट? क्योंकि बाइक से गिरेंगे तो सिर में चोट लगने की संभावना है. लेकिन आप जब कार चलाते हैं तो वहाँ सीट बेल्ट पहनना है, कार में आप हेलमेट लगा के नहीं बैठते हैं, राइट? तो इसी तरह से इंडस्ट्री में जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह का पीपीई किट होना चाहिए. So please remember, there should be right PPE kit. Okay, I gave an example. If you're driving a car, you don't wear a helmet, right? Because helmet is supposed to be worn when you're riding a bike. So appropriate PPE kit should be there. Right? Now moving to the next requirement, safety posters. Now, again, for all these PPE kits, safety posters, there are maximum 5 photographs are allowed, and click at least 3 photographs each. And when you click photographs of the safety posters, click it from a little distance so that we are able to see in which area it has been, put up. So that is something which is important, right? If you take a close up, probably it may lead to non-conformity. तो जब आप सेफ्टी पोस्टर्स का आप फोटो लेते हैं, दूर से लीजिए, उसको नजदीक से नहीं लेना है, उसका क्लोजअप नहीं लेना है. दूर से लेने से एसेसर को समझ में आएगा कि किस एरिया में लगाया हुआ है ये सेफ्टी पोस्टर. तो ये ध्यान में रखना है. मिनिमम 3 फोटोग्राफ्स तो आपको लेनी ही है, और 5 ले सकते हैं अगर उनके पास 5 सेफ्टी पोस्टर्स हैं. यू कैन ऑलवेज टेक दैट. और उसके बाद ट्रेनिंग, रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग. अब सेफ्टी में सेफ्टी ट्रेनिंग होनी जरूरी है. तो सेफ्टी ट्रेनिंग में अगर आप पहले उनसे पूछेंगे, व्हेनेवर यू अप्रोच एन एमएसएमई, आस्क कि सेफ्टी के ऊपर आपके यहाँ कोई ट्रेनिंग हुई है पहले. अगर वो कहते हैं हाँ, तो आप उनसे पूछिए कि उसका कोई सर्टिफिकेट है, उसका कोई रिकॉर्ड है. अगर उनके पास है तो आप उसकी फोटो अपलोड करिए. अगर वो कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग की थी लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उनसे पूछिए किस चीज की ट्रेनिंग की थी, क्या था टॉपिक ट्रेनिंग का. अगर वो बताते हैं आपको, तो आप ये टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें उनको बोलिए कि अपने कंपनी का नाम लिखें, ट्रेनर की कौन था, ट्रेनिंग की टॉपिक क्या थी, समय क्या था, किन लोगों ने अटेंड किया था, उनका नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सिग्नेचर, ये सब लेके आप उनको बताइए कि इसी फॉर्मेट को फ्यूचर में कोई भी ट्रेनिंग होती है उसमें फॉलो करें और मेंटेन करें इस रिकॉर्ड को. और इसका फायदा ये है कि कल को कोई इनका कस्टमर आता है तो वही रिकॉर्ड देखेगा और उससे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. So this is where it is about training records. Please make sure that before you start talking about the template or anything, ask a question. Do you conduct any training programs on safety? And if they say yes, ask them, when did you conduct it last? They'll tell you. And then you ask, do you have any record? If they have any certificate, any photographs, anything, upload that. If they say we have trained, but we do not have any record, then you give them this template. You ask them to write whatever training they had done, topic and all, who attended. Let them fill it and tell them that then this can be uploaded. But tell them that in future, whatever training program they conduct, they have to maintain it in this format, because it will help them to build trust amongst their customers and their employees and all the stakeholders, right? So that is a requirement. Now coming to the measurement of timely delivery. Now there's just one record. So you just ask, whenever they deliver a product, what are the records they maintain? So if they maintain the records, it can be in their register, it can be a logbook, it can be delivery challans, anything. But if they are maintaining it where quantity, product name, customer's name, dispatch date, all those things are there, that you can accept it. But if let's say it is not in an organized manner, excuse me, it is not in an organized manner, let us assume, then you tell, for example, they might record it loosely in some pieces of paper or WhatsApp or SMS.
In that case, you can give them template. You tell them that they have to maintain this for future deliveries, and also past 5 to 10 deliveries of different customers. Ask them to record the details in this format, and tell them that if you have it in this format, it will be easier for you to analyze, right? So this is how you have to address this. तो अगर आप यहाँ पे हम डिलीवरी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो आप एमएसएमई से पहले पूछेंगे कि वो डिलीवरी जो भी उनका माल भेजते हैं कस्टमर के पास, उसका क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अगर वो ऑलरेडी ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो रजिस्टर में कर सकते हैं, लॉग शीट पे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अगर उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट द माइक्स प्लीज। आप लोग ये बातें सुनाई पड़ रही हैं, आप म्यूट कर लें, जो भी जिसने भी अपना अनम्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आप अगर उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं तो उसको अपलोड करें, अगर नहीं है तो आप उनको ये टेम्पलेट दे सकते हैं। उनको बताइए कि भविष्य में इसको यूज करना है, इसको मेंटेन करना है, और एग्जिस्टिंग 8-10 डिलीवरीज कम से कम उनसे यहाँ पे फिल करवाइए, उसके बाद इसको अपलोड करिए। एंड देन सॉरी, we come to the last requirement, that is ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी। तो जैसे मैंने आपको सेफ्टी के ऊपर बताया, पहले आप पूछेंगे कि क्या आपने क्वालिटी के ऊपर कोई ट्रेनिंग की है, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अगर हाँ में जवाब आता है, उसका आप मांग के अपलोड कर दीजिए। अगर कहते हैं हमने ट्रेनिंग की है लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, तब आप ये टेम्पलेट दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है, चाहे वो सेफ्टी हो चाहे क्वालिटी है, तो आप उनको बताइए कि आप ट्रेनिंग करिए और उसके बाद ही आप सर्टिफिकेशन पे जा सकते हैं। ट्रेनिंग करके उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए। अगर वो कहते हैं कि मैं अभी एक टॉपिक पे ट्रेन कर सकता हूँ अपने लोगों को आपके सामने, तो आप बोलिए ठीक है, आप करिए, आप उसको देखिए कि वो प्रॉपर तरीके से क्वालिटी या सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप उन्हें ये टेम्पलेट दे सकते हैं जिसमें वो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर सकते हैं। So make sure if there is no training that has been done, make sure that they carry out training. Then only they and they have this record. Then only upload it. Otherwise, if someone proposes that in front of you they will train someone on safety or quality, allow them to do it, and then have them record it on this template and upload it. But also advise them to maintain all the training records, all the records of training in future. And once that is done correctly, the MSME will get the Z certificate, right? तो बस ये requirements हैं. I know most of you, because you've been already part of this, you understand that what are the requirements. But I believe this session has brought in some more clarity, and as you all know, this becomes pretty important now for anyone who's working on this. Okay, so now I'll quickly take the questions. So it is Manish Kumar. आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Manish, do you have any questions? Yeah. हाँ सर, ये पूछना था कि गोल्ड में 2.25% हम लोग को जो फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा, हाँ। मतलब मैन्युफैक्चरर को, सिल्वर और ब्रॉन्ज में कितना परसेंट उन लोगों को मिलेगा? एक मिनट आप लोग रुकिए। देखिए, ये आप लोगों को मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करके दिखा रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, बिकॉज प्रैक्टिकली मतलब मेरे लिए भी ये सारा याद रखना मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको आप इस्तेमाल करके आप एमएसएमई को भी शेयर कर सकते हैं, और उनको एकदम सही जानकारी जब उनको आवश्यकता हो आप दे सकते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So we will come to Z website. I hope my screen is visible. तो आप ये जब Z की वेबसाइट पे आप आते हैं, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेक्शन है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन, this not working. अच्छा, सॉरी। सो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे this is not a,
just a minute, that's giving me some trouble. हाँ, तो जैसे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स टैब पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुलेगा। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप सब यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रखें और जिस भी एमएसएमई के पास जाएंगे उस एमएसएमई को आप व्हाट्सएप भी कर दें, क्योंकि इसमें सारे बेनिफिट्स जो हैं इसके दिए गए हैं। सो दिस टेकिंग अ लिटिल टाइम टू अपलोड, फाइल थोड़ी हैवी है बट इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो ठीक है, सो इन द मीन वाइल ये अपलोड हो रहा है, तो तब तक हम दूसरा भी ये देख सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सारे इसके जो बेनिफिट्स हैं, आई डोंट नो व्हाई माय सिस्टम, या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे इंसेंटिव्स हैं मिनिस्ट्रीज के, स्टेट्स के, जितने भी है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आपको बैंक्स की भी सारी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक 0.5% कंसेशन प्रोसेसिंग फी पे दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये 25% प्रोसेसिंग फी पे दे रहा है। तो इसी तरह से सारे बैंक्स जो है उसका लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था स्मॉल एयू बैंक, लेट मी गेट टू दैट। आई होप ये हमारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन हो गया हो। आई थिंक दैट इज नॉट येट ओपन। एनीवे, सो इसमें थोड़ा सा भी आई थिंक माय सिस्टम हैज गॉट स्लो। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बैंक्स का सारा डिटेल है, जहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ईएसएफ स्मॉल बैंक है, 1% रिडक्शन, 1% इंटरेस्ट रेट पे, वो सभी के लिए दे रहा है, राइट। तो इसी तरह से सभी बैंक्स का यहाँ पे डिटेल दिया गया है और ये तो आप वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। दूसरा जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप उसको वेबसाइट के अलावा जो अगर आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, आई डोंट नो, दिस इज नॉट गोइंग, सो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अभी आई थिंक नहीं हुआ है। मैं आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आई विल शो यू वेयर इट इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Sir, after training, sir, you will send in a group. नहीं, दैट That कैन बी PDF, sir. शेयर्ड। नहीं, वो ठीक है, वो आपको हम भिजवा देंगे। माय कलीग इज हियर, ही विल शेयर दैट। बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे वेबसाइट पे है, तो ये ब्रोशर है, ठीक है। ये जो ब्रोशर है यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें जेड के बारे में, उसके लेवल्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या क्या, सब्सिडी, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसके क्या फायदे हैं अगर सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं, और ये जो बेनिफिट्स हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट्स हैं इनको, ब्रॉन्ज पे क्या है, सिल्वर पे क्या है, गोल्ड पे क्या है, ये सारा जो है ये है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में सर्टिफिकेशन के ऊपर 20 लाख तक का पर यूनिट फायदा मिल रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी, अगर कोई नया टेक्नोलॉजी लेता है तो 75% तक जो भी उनका कॉस्ट है, अप टू 50 लाख मिल जाएगा। ऐसे ही क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए 10 लाख तक का मिल जाएगा। यानी कि एमएसएमई अगर मान लीजिए 4,000 रुपए भी दे रही है, वो भी उनको 4,000 का जो है वो अप टू 50%, उसमें से 2,000 सरकार की तरफ से मिल जाएगा। सिमिलरली बैंक्स, इस सारे स्टेट्स जो है उनका है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक्स की, तो ये बैंक्स के डिटेल्स आ गए। तो आई थिंक दैट्स, या एयू स्मॉल फाइनेंस, राइट। तो इंटरेस्ट रेट जो आप कह रहे थे 2.25 गोल्ड के लिए देती है, सिल्वर के लिए 1.75% देती है और ब्रॉन्ज के लिए 1% देती है। तो ये ब्रोशर आप लोग सब डाउनलोड कर लें अपने पास, और जिस एमएसएमई का आप सर्टिफिकेशन कराते हैं उनको व्हाट्सएप पे ये इन्फॉर्मेशन भी भेज दें, ताकि वो ये सारे फायदे जो है वो ले सकें, एंड दे विल आल्सो रिमेंबर यू। इसी बहाने वो आपका नंबर सेव करेंगे और कभी भी उनको कोई आवश्यकता पड़ेगी, दे विल आस्क फॉर योर हेल्प। नाउ एक चीज और आप लोगों को मैं दिखा दूं वेबसाइट के ऊपर ही, वो है, जस्ट अ मिनट, वेयर इज दैट। यहाँ पे आप जेड स्टैंडर्ड, जब आपको कोई कहता है मुझे सिल्वर या गोल्ड लेवल पे जाना है, तो आप उसको यहाँ पे जेड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, इसको आप ओपन करके उन्हें दिखाएं और ये डॉक्यूमेंट आप उनसे शेयर कर लें। इसमें जेड का जितना भी जो रिक्वायरमेंट है, ये स्कीम गाइडलाइंस है। इसी तरह पे यहाँ पे जेड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम बात करते हैं हमारे स्टैंडर्ड की, तो ये जो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है, इसमें जेड ब्रॉन्ज पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे क्या क्या रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करनी है,